Good morning, my dear kids. So, today is the first day of spoken English, online spoken English. Welcome to that. Are you ready? Children, we'll be doing English from today till 30th of June. And daily, whatever topic we'll take up, you'll have to do it, practice it as much as you can. So when your tongue will not be tight on these words, I'm sure you will be able to speak very fluently. So I want you to write also. Seeing the video, you have to write everything and then practice. Because seeing only for once, you will not be able to practice it. And children, the topics which we are going to take up in this online spoken English class, they are situational conversation. So for few days we'll be talking at different situation. How people talk, suppose how the strangers converse with each other, then how the family members they talk to each other, how do we talk to friends, how do we talk on phone. So all these situational talking we will be doing. So you need not take my dialogues. You can invent your dialogues. You write some new dialogues. Be creative. And then you have to say how we'll give example. You have to make the example yourself at home. Make a small video and then post it in your class groups so that we will check and we'll be telling you your marks also and your improvements also, right children? And then we'll be also covering homophones and your vocabulary. See, we should have right word for a right occasion, for a right meaning. Homophones वो words होते हैं बेटा which sound same but they are actually different. तो वो भी हम करेंगे, जैसे I and I. So there is difference between two words but they are heard same. So I like this. So homophones हम बहुत सारे करेंगे तरह तरह के. Then vocabulary लेंगे, words, knowledge of words, and then we'll be taking up synonyms and phonics. Group discussions भी होंगे जब आप conversation में एकदम ठीक हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे. We'll be having mock interviews also. उसमें एक इंटरव्यूअर बनेगा, एक इंटरव्यूई, और जो दो लोग एक दूसरे का, लाइक वन कैरेक्टर कैन बी सम सक्सेसफुल पर्सन, या कोई आप सेलिब्रिटी बन जाइए, कोई एक्टर बन जाइए, साइंटिस्ट, टीचर, कुछ भी बन जाइए और दूसरा आपका इंटरव्यू लेगा. वो भी इंग्लिश में करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा. एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव सर्वे ऑफ सक्सेसफुल पीपल. एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो कि आप जो भी सक्सेसफुल है, आप अपने फादर मदर, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है, उनका इंटरव्यू लीजिए. सो वो वीडियो भी बनाइए, एंड दैट टू इन इंग्लिश. आप ज़रूर बात कर सकते हैं, लिख करके बैठ जाइए, लेकर के बैठ जाइए, 2-4 बार यू स्पीक 2-3 टाइम्स. एक्सेंट देखो, मिरर, शीशे के आगे खड़े होके देखो आप कैसे बोलते हैं, बार बार 10 बार जोर जोर से बोलो. फिर 11th टाइम यू हैव टू पुट स्ट्रेस एंड एक्सेंट. पहले 10 टाइम्स तो यू हैव टू स्पीक, एंड एज आई टोल्ड यू कि थिंक इन इंग्लिश, आप सोचो इंग्लिश में. So automatically words will come out. And then we'll be having translation and idioms also. Translation एक होता है English to हिंदी, हिंदी to English. Translate करते हैं हम कि ये इस भाषा में ऐसे, तो दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे. And idioms कौन से होते हैं, जो मुहावरे वगैरह होते हैं, जिनका सुनने में तो कुछ और लगता है लेकिन एक्चुअल उसका अर्थ कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होती है. So we'll be doing idioms also, कि हिंदी में ये है idioms, इंग्लिश में ये है, उनकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती. एंड देन वील बी डूइंग वर्ड्स फॉर डिफरेंट सीन्स. हम हर जगह के सीन्स के वर्ड्स देखेंगे. जैसे अगर हम फ्लाइट में जाते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर के सारे आप वर्ड्स जो फ्लाइट रिलेटेड है. आप रेलवे स्टेशन जाएं, आप बस स्टैंड जाएं, आप किचन में जाएं, आप गैराज में जाएं, आप जहाँ भी जाएं, सो यू हैव टू टेक अप वर्ड्स एंड स्पीक. वहाँ से आपको नए नए वर्ड्स बोलने हैं. एंड देन वी हैव डिफरेंट बिटवीन रिटन एंड स्पोकन. फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी टुडे ओनली. दिस विल बी टेकन अप in every video, as well as in the end also we'll take it up, because written और spoken English different होती है. जब हम write करते हैं तो हम लिखते हैं I can not. When we speak we say I can't, I am not, I ain't,
he will do, he'll, हम he'll तो ज्वाइन कर देते हैं वर्ड्स को स्पोकन में. सो वो आपको पढ़ना है. जैसे I am लिखते हैं तो I then am, बट हम उसको ज्वाइन कर देते हैं, I am बोलते हैं. I am fine, I am fine नहीं, I am fine. ठीक है. What is your name नहीं, What's your name. तो ये कंबाइन करके ही इंग्लिश का सारा खेल हो जाता है. और स्ट्रेस, दो चीज़ें ध्यान रखनी है. आपको इंग्लिश आती है, वर्ड्स आता है, ग्रामर आता है, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, तो आप कर सकते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने डायलॉग राइटिंग करेंगे बहुत सारी, जो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी. तो बहुत सारी डायलॉग राइटिंग करिए, सीन राइटिंग करिए, डायरी राइटिंग करिए. राइटिंग से आपको आ जाएगा, राइट. रिटन भी ज़रूरी है, बट first of all is listening. So listen a lot. Thank you. Let's start our video. So my dear junior children, class 2 to 5, this is day 1 and we'll be doing situational conversation. Situational conversation मतलब बेटा किसी situation के ऊपर हम जब conversation करते हैं यानी बातचीत करते हैं, that is situational conversation. और उसका first topic है कॉन्वर्जेशन बिटवीन स्ट्रेंजर्स. ठीक है. जब दो अनजान लोग बातचीत करते हैं, राइट. कॉन्वर्जेशन बिटवीन स्ट्रेंजर्स, जब दो अनजान लोग बातचीत करते हैं. अब हमारे दो जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं जॉन और डिक. ठीक है. आप लोगों ने क्या करना है, मेरे पढ़ाने के बाद यू हैव टू टेक जॉन, अपना नाम लिख लीजिए, और डिक में अपने किसी भी फ्रेंड का, फैमिली मेंबर्स का नाम लिख लीजिए, और इसको नोट डाउन करके सारे कॉन्वर्जेशन को आपने बार बार बोलना है, जिस स्टाइल से आपको हम बताएंगे. ठीक है. उस एक्सेंट के साथ आपको बोलना है स्टूडेंट्स, और लर्न करना है. और इसका एक वीडियो बनाकर कल तक आपने अपने ग्रुप में भेजना है, राइट. तो जिसका जितना अच्छा कॉन्वर्जेशन रहेगा, एंड यू कैन ऐड ऑल्सो, आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं. मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके चिल्ड्रन. सो फर्स्ट जैसे जॉन, फर्स्ट स्टूडेंट कह लो या चाइल्ड कह लो, किड कह लो. सो फर्स्ट पर्सन इज जॉन. तो अब हम अनजान से मिल रहे हैं. जॉन किससे मिल रहा है, डिक से. तो जॉन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है. हेलो आई एम जॉन. ठीक है. हेलो आई एम जॉन. सो बेटा आई एम, ये आई और एम है तो ये रिटन में आता है आई देन ए एम एम. बट व्हेन वी स्पीक वी ऑलवेज कंबाइन वर्ड्स. तो यहाँ पे अगर हम आई एम बोलते हैं, दैट इज द करेक्ट इंग्लिश, स्पोकन करेक्ट है. हेलो आई एम जॉन, ना कि हम कहेंगे हेलो आई एम जॉन. ये गलत है, मतलब गलत नहीं है, बट दिस डजंट अपीयर गुड. कॉन्वर्जेशन में, स्पोकन में हम इकट्ठा बोलते हैं. हेलो आई एम जॉन. डिक कहेगा हेलो आई एम डिक. ओके. डिक ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, जॉन ने अपने आप को किया. फिर अब बात आगे बढ़ानी है तो क्या करेंगे, जॉन कहेगा हाउ आर यू डिक. कैसे हो तुम डिक. हाउ आर यू डिक. अब क्वेश्चन मार्क है, हाउ आर यू डिक ऐसे नहीं होगा, वो स्टेटमेंट हो जाता है. दिस इज अ क्वेश्चन. सो हाउ आर यू डिक, डिक तुम कैसे हो, इस स्टाइल से आपने पूछना है. हाउ आर यू डिक. डिक कहेगा आई एम फाइन. देखो यहाँ पे भी आई एम नहीं, आई एम फाइन. हाउ आर यू जॉन. अब यू के नीचे अंडरलाइन इसीलिए है दैट यू हैव टू पुट स्ट्रेस देयर. हाउ आर यू जॉन, क्योंकि उसने पूछ लिया है हाउ आर यू डिक. आप जब रिपीट कर रहे हैं, अब आप उसको पूछ रहे हैं जॉन को कि तुम कैसे हो. जब हम तुम कैसे हो हिंदी में भी हम स्ट्रेस डालते हैं. सो हाउ आर यू जॉन. जॉन कहेगा आई एम ऑल्सो फाइन. अब उसने ऑल्सो क्यों कहा है, क्योंकि उसने भी फाइन ही कहा था, डिक ने भी फाइन कहा था, जॉन भी फाइन कह रहा है, तो आई एम ऑल्सो फाइन. या कह सकते हैं आई एम फाइन टू. व्हाट डू यू डू डिक. अब जॉन पूछ रहा है कि तुम क्या करते हो. व्हाट डू यू डू डिक. डिक कहता है आई स्टडी इन क्लास 3rd. एंड व्हाट डू यू डू जॉन. और जॉन तुम क्या करते हो. जॉन कहेगा I study in class 3 too. ये TOO मीन्स भी, और आपने TOO के ऊपर भी स्ट्रेस देना है. ऐसे नहीं कह सकते आप I study in class 3 too, ये गलत हो जाएगा. I study in class 3rd
2। क्लास 3 की जगह आप थर्ड बोलेंगे। इंग्लिश में हम रोमन बोलते हैं बेटा, रोमन जो भी होता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हम रोमन यूज करते हैं। डिक, व्हाट डज योर फादर डू? अब देखिए डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब यहाँ पे डू है कि आपके फादर क्या करते हैं। क्योंकि फादर सिंगुलर है तो डज लगाया है और डज के बाद सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो, जो वर्ब है वो प्लूरल का ही आता है तो डू ही आएगा। डज के बाद गो, डज के बाद ड्रिंक, ठीक है। व्हाट डज योर ड्रिंक्स, सो व्हाट डज योर फादर डू? माई फादर इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, ये उसका रिप्लाई है। माई फादर इज अ, अब जो भी फादर है, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज अ बैंकर, माई फादर इज अ प्रोफेसर, माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज व्हाटसोएवर। आपके जो भी है आप अपना यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट डज योर फादर डू? देखिए फिर से योर पे स्ट्रेस है। मेरे फादर तो बिजनेसमैन है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? नाउ यू कैन राइट डिक इज सेइंग माई फादर डील्स इन मेडिसिन, कि मेरे पिताजी दवाइयों में डील करते हैं, यानी दवाइयों का काम करते हैं। अब आप लिख सकते हैं माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ ही रन्स अ स्टोर, और ही रन्स whatever school, he runs a school, he is a educationist। फिर जॉन कहता है where do you live Dick? अब क्योंकि वो जानता है डिक है तो now he is using his name। where do you live Dick? I live at Model Town in बाड़मेर। अब ये देखिए at आया है मॉडल टाउन के आगे, क्यों? बिकॉज मॉडल टाउन स्मॉल प्लेस है। स्मॉल प्लेस, अगर दो प्लेसेस हैं और उसमें स्मॉल प्लेस है तो स्मॉल के आगे आएगा एट और बड़ी प्लेस के आगे आएगा इन। आई लिव एट मॉडल टाउन इन बाड़मेर। एंड वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन मॉडल टाउन इन बाड़मेर टू। जॉन कहता है मैं भी वहीं रहता हूं, तभी टू आया भी। I live at Model Town in Barmer too. Dick, oh, what a coincidence, John. क्या मतलब हुआ कि क्या इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों एक ही जगह रहते हैं पर हम मिले नहीं। Oh, what a coincidence, John. तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। जब हम थोड़ा सरप्राइज्ड होते हैं या हमारी फीलिंग स्ट्रांग होती है तो हम एक एक्स्ट्रा एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन वाले ये सेंटेंस है जिसमें हमारी थोड़ी स्ट्रांग फीलिंग होती है। अब ये एक्सक्लेमेटरी ओह भी हो सकता है, कोई सैड भी हो सकता है, वेरी हैप्पी भी हो सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रांग फीलिंग। फिर जॉन कहता है यस। अब यस किस लिए किया कि हाँ ये बहुत ही इत्तेफाक की बात है। सो वी विल मीट सून। अब सो क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो हम जरूर अभी जल्दी मिलेंगे। वी विल मीट सून। डिक कहता है ओके बाय सी यू अगेन। ठीक है अब चलते हैं, बातचीत हो गई, अब हम दोबारा मिलेंगे। जॉन कहता है बाय बाय, जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। ये एक कॉन्वर्जेशन है जो आपने अपने हिसाब से इसको चेंज करके या सेम भी लिख सकते हैं और आपने इसका वीडियो बनाना है। दो बच्चे लर्न कर लेंगे और स्टाइल से जो जितना अच्छा एक्सेंट यूज करेगा उसको चूज किया जाएगा। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ टास्क फॉर यू। ये एक आपके लिए काम है, आपने इसको जितना अच्छी तरह से आप इसको बोलेंगे दो के साथ वैसे ही आपने दैट विल रियली हेल्प यू। और आप किसी भी अनजान इंसान से ऐसे बातचीत शुरू कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको मजा आए और आप सुने और आपने ऐसे बनाना है वीडियो। राइट, लेट्स स्टार्ट। सो अब मैं कौन बन रही हूं? आई एम जॉन, ठीक है, और शिवानी मैम है मेरे साथ, वो डिक बन रही हैं। ठीक है, मैं जॉन हूं, शिवानी मैम डिक है। तो जॉन बोलता है, मैं बोलूंगी। अब हम ये जॉन और डिक नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे। हेलो आई एम जॉन। हेलो आई एम डिक। हाउ आर यू डिक? आई एम फाइन। हाउ आर यू जॉन? हाउ आर यू जॉन? यू पे थोड़ा हम स्ट्रेस करेंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। व्हाट डू यू डू डिक? I study in class 3rd and what do you do John? Yes, I study in class 3 too. 2 means मैं भी 2.
What does your father do? My father is a businessman. And what does your father do? My father deals in medicine. Where do you live, Dick? I live at Model Town in Badmer. And where do you live? I live at Model Town in Badmer too. Oh, what a coincidence, John. Yes, so we will meet soon. Okay, bye. See you again. Bye-bye. So this was an example for you. और इस तरह के वीडियो इसमें नई नई बातें जोड़ करके क्लास 2 to 5 वाले अपने क्लास ग्रुप में वीडियो भेज सकते हैं. राइट चिल्ड्रन? और इसको यू हैव टू प्रैक्टिस इट. पूरा दिन प्रैक्टिस करिए. आप अपने घर वालों को स्ट्रेंजर बना दीजिए, क्योंकि स्ट्रेंजर के साथ तो आप बाहर जाके नहीं बात करेंगे. यू चूज, मदर को ले लो, मम्मा को भी सिखा दो ये वर्ड्स और ये लाइंस. नहीं तो ब्रदर को ले लो, फादर को ले लो, ग्रैंड पेरेंट्स को ले लो, उनको लिख कर दे दो. इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में इंग्लिश लिख कर दे दो और उनके साथ आप बातें करिए. और इसको जितनी अच्छे से लर्न करके आप बार बार यूज करेंगे, सो बेटा यू विल नेवर बी uncomfortable or you will never hesitate to talk to a stranger. Okay? Bye-bye.